Hi guys, what's up? क्या हाल? Hello? Everybody come on video. Everybody come on video. Hi Ryan Gandhi. Hello, sir. Hi. Come on video people. Raghav, Snehal, Aditya, Jaden, Ameya. Sir, can I just come in 2 minutes? I'm having my lunch. Oh, क्लास का टाइम है भाई 3 बजे. Be ready for class on time. Snehal Kashyap, are you there? Yes, sir. Come on video. Yes, sir. 1 minute. Okay. Setting up the camera. All right. Ameya Sonkaskar, Rishita Kedia. Come on video. Bhavika Jain. Come on video. Ryan Gandhi, what happened to your video? Hi Snehal. Hi Aditya. Can you hear me? Snehal, Aditya. Yes, sir. Hi. I said hi. Hello, sir. Snehal Kashyap, hi. Hi, sir. Okay. Jasmine, I think you are the one attending trial. Come on video. Yeah. Hi. Jaden Jimmy, come on video. Jaden, are you there? Jaden. 5 minutes, sir. Okay. यार क्लास के लिए रेडी होके आया करो ना. अमेय सुनकास्कर, are you there? अमेय सुनकास्कर. We wasted 6 minutes doing this, man. Rishita Kedia, are you there? Yes, sir. Come on video. Sir, I'm actually not well. Can I keep it off? So बहुत uncomfortable है क्या अभी? Yes, I actually have COVID. Okay, but Can I please, since this class, I'll keep it on to next class. okay. Get well soon. Thank you. Bhavika Jain, are you there? Bhavika Jain. Yeah, जिनका response नहीं आ रहा, I'm going to remove them. Okay. Bhavika Jain, are you there? Last call.
Once I remove from the class, you will not be able to join the class again. That's what happens on Zoom. Bhavika Jain says, sir, if I switch on my camera, I get kicked out of the meet. But ये तो on करो microphone. Amazon Khaskar, are you there? Same with your mic. So then this cannot work, na? It's not a. तो फिर तो तुम recording ही देख लेना बाद में. Unless there is interaction, what's the point? It's been a year. Amazon Khaskar, put on your camera. Abir Chaturvedi, camera. Sarah Jacob, camera. Hi Abir. यार चलो गेम खेलते हैं. Come quickly on video. Raghav Tandon is here. Hi Raghav. Sarah Jacob is here. Hi Sarah. Jimmy Jaden, I'm still waiting for you. Bhavika Jain. Call me on my phone and tell me what is the issue. Amazon Khaskar, come on video. कहाँ गए भाई अबीर and Raghav? Don't put off your video ना. एक इतना time लग रहा है तो मेरे को to get the people on video. What happened, Amazon Khaskar? Why not able to come on video every class? Why does this happen? And we've made this protocol, right? If you can't come on video, or if anything is not working fine, then your parent need to tell us that this is not working fine so that they can work on it in the next class. It's not switching on. How can it not switch on, man? Such an easy thing. What is the issue? And why does it not switch on in every class? Acha, mic to on karo. I can give you some leeway for video, but mic to on karo yaar, so that I can talk to you. Otherwise, what's the point? फिर अगर interaction नहीं है तो video recording ही देख लेना बाद में. I want only all those people in the class today who can interact with me. Today's class is going to be extremely engaging. A lot of interaction is going to happen. A lot of fun is going to happen. Last class we talked about mirror. In fact, we talked about the concept of light, how it travels, and the whole. You remember the lateral inversion, why that happens, right? I think somebody won that 1,000 rupees, 500 rupees prize also in last class. So in today's class, we're going to get into the detail of the terminology of spherical mirror, and we're going to predict where the image is going to be formed. Okay, so the mathematics behind it. Now, here's the thing. If I see anybody without video, I'm going to kick them out of the class because otherwise I have to keep deviating from my topic. That should not happen. Jaden, what happened? Just a second. Yeah, Jimmy Jaden, what happened? अभी तो आए थे तुम वीडियो पे. Okay, Raghav is here. Vasudha, Tanisha, come on video quickly. बहुत लेट आ रहे हो तुम लोग क्लास में.
Vasudha and Tanisha, come on video. Okay, so I've written on the group also. I'm going to take you off the class if you're not putting the video on. So either you let your parent call me and explain to me why you're not putting on the video, or otherwise I'm going to take you off the class and I'm going to put it in the group. All right, keep your video on throughout. I'll tell you when you can put off the video, but abhi interaction chahiye yaar शुरुआत में. That's why. Hi Vasudha. Hi Ritvik Vishal. Okay, Rishida is present. Okay, Sarah is here, Abir is here, Raghav is here, Ryan is here, Snehal is here, Aditya Ran is here. Jasmine, are you there? Yeah, I'm there. Are you going to put on your video? Actually, I'm attending the class from my PC and it doesn't support the camera, so. That's okay, but keep your audio on so that we can interact. Interaction is important so that I can understand where you're finding it difficult. Okay. Jimmy Jaden. Amay Sonkaskar. Sir, can I on my video after 2 minutes? After? 2 minutes. Yeah, okay. ठीक है, चलो चालू करते हैं. All right. So in the last class, Vasudha, can you tell me what all we covered? Yes, sir. Sir, we did. थोड़ा mic पास ले आओ ना. Sir, we did a few rules. I think वो दूसरा mic है तुम्हारा, इस mic से नहीं आ रही आवाज. अभी चतुर्वेदी, tell me. क्या क्या cover किया था last class? जो भी याद हो बता दो यार. That's okay. So first we discussed the two laws of reflection. What is that? What are those laws? Laws of reflection. Because Jasmine is new in the class, so just let's do a quick review So of what we the did. first law is that the angle of reflection and the angle of incidence is equal. Yeah, it's equal. Angle of incidence किससे नापते हैं? Jasmine, do you remember? 8th class में पढ़ा होगा तुमने. Angle of incidence कैसे नापते हैं? Jasmine. It's okay. If you don't remember, you can say you don't remember, but I need a response. Jasmine. चलो राघव बताओ. So it's the angle between the normal and the incident. Correct. What is normal? Sir, it is So imaginary line perpendicular to the plane mirror. Perpendicular to the plane. ठीक है. तो यहाँ से हमने angle of incidence नापा, तो जितना angle of incidence होगा उतना ही angle of reflection भी होगा, है ना? So that's the first law. Second law is. Sorry, so I was disconnected Okay. for a moment. Could you please repeat the question?
Jasmine is asking you, do you remember from grade 8 how do we measure angle of incidence? So it's the angle between the normal and the reflected ray, I guess. नहीं, angle of incidence है तो incident ray. Angle of reflection will be normal and reflected ray. Yeah. So incident ray is the normal and incident ray के बीच का angle. What is the normal, Jasmine? The 90-degree ray So normal in physics, of a surface. normal in physics is always a line perpendicular to the surface. Okay. So for example, if this is a mirror, तो mirror का surface ये है तो उसका normal ऐसा होगा, perpendicular. ठीक है? Normal is always perpendicular to the surface. ठीक है? Okay. So ये हमने last class में बहुत सारा plane mirror के बारे में बात की थी, और how the image will be and everything. In today's class we're going to talk about spherical mirror. What is spherical mirror? So अभी कुछ note मत करना. अभी I'll be drawing things here and I'll keep asking questions. You guys have to keep responding. ठीक है? And I'll direct the questions to you all. तो मैं जिस particular person को direct करूँगा question, they can respond to me on voice. Everyone else respond to me on chat privately. Okay? चलो. Chat. Got the chat screen here. Chalo. So, Jade and Jimmy, tell me what's a spherical mirror? Jade and Jimmy. Jade and Jimmy है ही नहीं क्या? हमें सुनकास्कर you said 2 minutes में on करोगे, अभी तक नहीं हुआ क्या? Snail Kashyap, where did you go? Yeah, this takes a lot of time. And it breaks the flow also. Keep your video on all the time. If I see anybody without the video, I'm going to just remove them from the group, okay? Keep it on. Okay. Ritvik Vishal, what is a spherical mirror? It's a part of a sphere. Correct. एक sphere लिया हमने, hollow sphere, उसके एक particular part को हमने काट लिया, ऐसे. ये पर्टिकुलर पार्ट अगर हमने ऐसे निकाल दिया इसका, ठीक है, ये पार्ट निकाल लिया और उसके एक साइड को हमने पॉलिश नहीं किया, उसमें हमने इनफैक्ट एक ओपेक फिल्म लगा दी और दूसरे वाले साइड को पॉलिश कर दिया, तो ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा. ठीक है. अब इस पूरे मिरर का कर्वेचर क्या होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर जिससे इस मिरर को काटा था. ठीक है. तो दिस इज द सेंटर, तो दिस विल बिकम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिरर. गेट इट? जास्मिन, डिड यू गेट इट? Yes, sir. अब इसको मिटा दिया हमने. अब ये स्फीयर स्फेरिकल मिरर हो गया क्योंकि इतना ही पार्ट हमने काटा है, वो स्फीयर गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इस मिरर का सेंटर लेंगे. तो मिरर का सेंटर क्या कहलाएगा? तनीषा दास, टेल मी. मिरर के सेंटर को अगर हम पकड़ेंगे, ये कोई सेंटर होगा उसका, पोल. हाँ, इट्स कॉल्ड पोल. ब्रिलियंट. सो दिस इज कॉल्ड पोल. पी से हम डिनोट करते हैं, दिस इज पोल. ठीक है, पोल. दिस इज सी. सी इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना. अभी नोट मत करना, अभी सिर्फ फॉलो इट. आई एम गोइंग टू कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड टेल मी, Aditya Rane, if I connect a line between center of curvature and pole, what will this be called? Principal axis. Principal axis. Brilliant. So this will be called principal axis. So this line is called principal axis. What is principal axis? Principal axis is the line joining center of curvature and the pole of the mirror. Principal axis. ठीक है. अब अगर एक इंसिडेंट रे हो, you know, it's like an incident ray like this which is parallel to principal axis.
when it hits the mirror, where will the reflected ray go? Sir, can I say? वसुधा तिवारी, एक रे गई इंसिडेंट रे, ठीक है, वो ऐसे गई, यहां से ऐसे गई और इसने हिट किया, तो ये कैसे कहां से पास होगी? Sir, as the incident ray is parallel to the principal axis. या क्लाइमैक्स में म्यूट हो गई, शी फ्रोज राइट एट द क्लाइमैक्स. ओके, सारा जेकब. Oh no, Vasudha is Sorry, here. sir, I got disconnected. I know. So you said if the incident ray is parallel to principal axis, then what happens to the reflected ray? Sir, then it will pass through the focus. Through focus. And where is focus? Sir, can I say? Sir, Vasudha, where is focus? Everyone, you can keep answering sir, on that. in the Where is sir, focus, the Vasudha? focus is in the middle of Correct. It's the midpoint between C and P. sir, So the आधा. focus is present in the middle. of Correct. the So it's the midpoint, right? So यहाँ से वो ऐसे जाएगा. Like this. ठीक है? Awesome. So basically, अगर एक रे ऐसे जा रही थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, and this particular point is called focus, जहां से वो पास होगी, right? Get it? And if there is an incident ray which is passing through focus, sorry. If there is an incident ray that is passing through focus, so after reflection, where will it go from? Ryan Gandhi, tell me. अगर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस है तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या पता है तुमको? क्या होएगा रिफ्लेक्टेड रे के बारे में? Sir, can I say? रायन गांधी. Yes, sir. हाँ, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा भाई? जल्दी बताओ ना. It will pass through focus again. नहीं मेरे भाई. अगर फोकस से आती है रे तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो बाद में फोकस से चली जाती है. उल्टा भी पॉसिबल है. आ रहा है समझ में? फोकस से अगर रे Sir, can you explain? if the incident ray is going through focus, after reflection it will become parallel. It will become parallel to Ryan Gandhi. It will become parallel to what? Principal axis. हाँ. तो अगर ऐसे रे गई जो फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद will become parallel to principal axis. और अगर रे ऑलरेडी पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा रायन गांधी? It will pass through focus. ठीक The है. ray will pass through ठीक है. focus. Okay, Jasmine, can you repeat this for us? What is this that we just did? What are the rules that we just understood? So if the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray will pass through the focus. And if the incident ray is passing through the focus, the reflected ray will be parallel to the principal axis. Correct. Very good. ये क्यों होता है ऐसा मैंने पिछली क्लास में समझाया था, so I'll send you the video, you can watch that. Okay, next अबीर चतुर्वेदी. If the incident ray, अब और क्या केस बन सकता है अबीर चतुर्वेदी? Sir, the incident ray could pass through the center of curvature. Brilliant, Abhir Chaturvedi, very good. Abhir Chaturvedi is attentive in class, which is very nice. So, I didn't take the line. Okay, so Abhir Chaturvedi, if this goes through center of curvature, so what will happen to the reflected ray? Or the angle of reflection will be 0 degree. So what will happen to the reflected ray? Reflected ray कैसे जाएगी? Sir, it will pass through the pole. वापस, it will pass through pole. Sorry, sir, it will pass through the focus. नहीं, pass through focus तभी होता है जब parallel होती है principal axis के. ऋत्विक विशाल. Sir, it will go on the same path.
Exactly. It is the same path because the angle of incidence is 0 because ये perpendicular ही है. So angle of reflection will also be 0. मतलब same path पे ही वापस चला जाएगा. Like this. Get it? आया? So, sir, are you considering the incident ray passing through passing through the center of curvature as perpendicular at हाँ, any point of time? सेंटर ऑफ कर्वेचर से सारा मतलब ये रेडियस हो गया ना, क्योंकि ये तो सेंटर था, तो ये रेडियस हो गया. एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये नॉर्मली हो गया. आया? ठीक है, ये नोट कर लो. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Sir, I have a doubt. हाँ बोलो ना. Sir, so if the incident ray is moving on the same path as the principal axis, it will pass back again on the principal axis as it's forming a perpendicular. करेक्ट, क्योंकि इसमें कौन सा रूल लगा सकते हो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है तो मतलब वन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू फोकस, मतलब वापस ऐसे जाएगा फोकस से. अनदर इज क्रॉसिंग थ्रू सी व्हिच मींस इट ट्रेस इट्स पाथ बैक, मतलब ये वापस ऐसे जाएगा. दोनों रूल से वही आएगा कि इफ इट गोज इन प्रिंसिपल एक्सिस विल कम बैक टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो नोट कर लो. जैसे अच्छे से बनाया स्केल से वैसे ही बनाओ, और ये मेजर करके बनाना. ठीक है, इसको 3 सेंटीमीटर ले लो, पोल से लेके F तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ले लो, और F से लेके C तक का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर ले लो, तो तुम्हारी कॉपी में ठीक से आएगा. 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जितना तुम्हारा कॉपी जितना बड़ा हो वैसा ले लो. और लाइन से एक पॉइंट ले लो, यहाँ से एक पॉइंट, उससे ऐसे रेस निकालो और स्ट्रेट इससे स्केल से पेंसिल से खींचो लाइंस, बिकॉज ये सब और एरोज बनाना बहुत जरूरी है. तो ये दिस इज कॉल्ड रे डायग्राम. ये 4 नंबर का आएगा एग्जाम में अलग अलग केस के लिए. तो अभी आज मैं रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा. एट द सेम टाइम यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन इमेज इज फॉर्म. हमारी आंख को जो दिखता है वो क्यों दिखता है. चलो उसको नोट कर लो, देन आई विल टेल यू मोर. Sir, for the mirror, we have to use a compass, or we can just calculate. अच्छा, इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दैट द मिरर, ऑल दिस रूल्स आर फॉर द मिरर विच इज वेरी थिन. थिन का मतलब क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज थिकनेस. ये थिकनेस जो है बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम, जितना थिन होना चाहिए. इसलिए जब एक्चुअली तुम मिरर देखोगे तो बस स्लाइट कर्व रहेगा ऐसे. ठीक है, आई विल इन फैक्ट गेट अ स्पून, क्योंकि स्पून में तुम्हें कर्व मिलेगा ना. तो आई जस्ट गेट अ स्पून, गिव मी अ सेकंड. गॉट इट. जब नोट हो जाए तो हाथ उठा देना. और ये सब जो भी आज तुम नोट कर रहे हो एक कॉपी में अच्छे से नोट करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्लास आई एम गोइंग टू आस्क यू टू सबमिट इट टू मी इन द ग्रुप इन अ PDF. बहुत सारे रे डायग्राम बनेंगे, उसको अच्छे से नोट करते जाओ, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल सबमिट इट. When you're done, raise hands. Amay Sonkasar, come on audio. So, Amay Sonkasar, if a ray, incident ray, is parallel to principal axis, what will happen to reflected ray? it will pass through focus. Okay. If the incident ray is passing through focus, what will happen to reflected ray? It will be parallel to principal axis. Very good. And if the incident ray is passing through center of curvature, what will happen to It reflected will ray? reflect back.
करेक्ट, इट ट्रेस द सेम पाथ बैक। ऑलराइट, ये 3 रूल हैं जो अब हम फॉलो करेंगे और सारे रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डन एवरीवन, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। Sure, wait. ओके डन। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ रहे हैं, चलो बाद में कर लेना जिसका नहीं हुआ। सो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। अब जैसे स्फीयर है, उसका तुम अगर एक पर्टिकुलर पार्ट काटोगे तो या तो ऐसा दिखेगा एक स्फीयर जिसका बाहर की तरफ को हमने पॉलिश नहीं किया, अंदर की तरफ को पॉलिश किया, ठीक है, और दूसरा पार्ट ऐसा दिखेगा जहां हमने बाहर की तरफ को पॉलिश किया, अंदर की तरफ को पॉलिश नहीं किया, ठीक है। सो इफ दिस इज वेयर द रिफ्लेक्टिंग एरिया इज, you know, inside of the sphere, if that is reflecting, then this is called concave mirror. Concave mirror. And if the outer side is reflecting, then this is called convex mirror. इसको याद करने का तरीका क्या, केव ऐसा दिखता है ना, केव में अगर तुम जाओगे तो केव अंदर से ऐसा रहता है, तो उसको वैसे याद कर लेना। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। डन। टेल मी Jasmine, this side, Yeah, is this concave or convex? it's concave, Very good. And this side? convex. ठीक है, अभी तुम देख सकते हो ये मिरर बहुत ही थिन है, तो इसका जो यू नो दिस थिंग आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट आर वेरी नॉट वेरी फार अवे, बट इससे भी थिन होना चाहिए मिरर, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इमेज बनाएंगे, देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है, कहां से बनती है, ठीक है। चलो चालू करते हैं। अभी डोंट ड्रॉ एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट कीप आंसरिंग कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। Put off the video for a bit because otherwise this lags. और हमने ये एक मिरर बना लिया, थिन मिरर। ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है एवरीवन? Concave. Concave. ठीक है, अब सब लोग अपने माइक को ऑन रख सकते हो और आंसर दे सकते हो। अभी मैं फटाफट करूंगा, ठीक है। तो इसका सेंटर सपोज यहाँ पे है। इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 8 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द पोल, वेयर विल बी फोकस? 4 centimeter. 4 centimeter away from the pole and center of curvature. So it will be 4 centimeters away, because half. So basically focal length is equals to half of radius. ये एक फॉर्मूला, ठीक है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा ऐसे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऐसे बनाते हैं, ऊपर एक एरो डाल देते हैं। क्यों डालते हैं एरो? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि भाई इसका टॉप पार्ट क्या है, कैसा दिखता है, और बॉटम पार्ट कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, अब हम एक रे निकालेंगे। तो अब मुझे ये बताओ रायन गांधी, Yes, sir. टेल मी, ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सी कलर का ऑब्जेक्ट है? Red color. ब्राउन कलर है, ठीक है। ब्राउन दिख रहा है कि रेड दिख रहा है तुमको? Sir, dark red actually. So it looks like that. लुक्स लाइक रेड। हाँ एक्चुअली राइट, Maroonish. थोड़ा सा वैसे मरून टाइप लग रहा है। कोई बात। तो अभी ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मिरर रखा होगा, जैसे ही हमने मिरर रख दिया है ना, तो यहाँ से रेज निकलेंगी बहुत सारी। कौन से डायरेक्शन में निकलेंगी ऋत्विक, विशाल? यहाँ से जो रेज निकलेंगी कहाँ कहाँ निकलेंगी? In all directions. एग्जैक्टली, सब डायरेक्शन में निकलेंगी ऐसे रेज, बहुत सारी रेज निकलेंगी। बट हमको तो सब रेज के बारे में नहीं पता,
हमको कुछ ही रेस के बारे में पता है कि ये रे ऐसे जाती है तो ऐसा हो जाता है, तो क्या क्या पता हमको? तो एक रे हम पैरेलल निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है पैरेलल रे का क्या होता है, तो हम टॉप पार्ट से निकालेंगे एक रे पैरेलल, उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये अगर इंसिडेंट रे निकलेगी तो ये कहाँ जाएगी फिर? ऋत्विक, विशाल? Sir, it will go through the focus. वेरी नाइस, विल गो थ्रू द फोकस। ठीक है, तो ये एक रे गई और रिफ्लेक्ट हो गई तो ऐसे आ गई। ठीक है, जैस्मिन, Yeah. विच अदर रे डू वी नो ऑफ, जिसके बारे में हमको पता है आगे क्या होगा उसका? So if the incident ray is passing through the focus, the reflected ray will be parallel to the principal axis. All right, so the reflected ray will be parallel to principal axis. तो हमको ये रे के बारे में पता चल गया है ना। और जैस्मिन, any other ray that we know of? If the ray is passing through the center of curvature, Yeah. it will trace its path. It will trace its path. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं। क्योंकि मैंने एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ से। सो नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस इज दैट द रे पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल कम बैक लाइक दिस, राइट। सो अब इसको मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से गई रे तो ये ऐसे आ गई, जो यहाँ से गई तो वो ऐसे आ गई, और जो यहाँ से गई तो वो वापस आ गई, है ना। तो अगर हमारी आई यहाँ पे रखी होगी, यहाँ पे हमारी आईज होती, तो हमारी आंख को क्या लगता कि ये सारी रेस कहाँ से आ रही है? उसको ये ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा, इस तरफ देख रही है आंख, तो उसको क्या लगता है इस पॉइंट से आ रही है ये सारी रेस, राइट, है ना राघव टंडन? Yes. यहां से लगता है इस पॉइंट से आ रही है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है ना। The eyes will imagine that there is something kept here, and that is the image, because the eye is imagining कि कुछ रखा हुआ है इधर, तो this is called the image. हमारी आंख को जो लग रहा है, हालांकि रेस तो यहां से आ रही है, बट हमारी आंख को लग रहा है कि भाई यहीं से आ रही होगी, क्योंकि यहीं से सारी रेस निकल भी रही है ना एक्चुअली, तो हमारी आंख को लगेगा यहाँ पे इमेज है। अब ये जो इमेज दिख रही है तुमको इन्वर्टेड है वर्टिकली, और छोटी है कि बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट? अबीर चतुर्वेदी, छोटी है। छोटी है, so this is called diminished, क्योंकि थोड़ी छोटी बनी है, तो दिस इज कॉल्ड डिमिनिश्ड। ठीक है, और ये सी के बियॉन्ड रखा हुआ था, तो बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, जब बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज बनी सी और एफ के बीच में, है ना। और ये रियल है कि वर्चुअल है? Virtual. और रियल तो रियल और वर्चुअल हमको कैसे पता चलता है? अगर रेस एक्चुअली मीट होती है कहीं पे तो वो रियल है, क्योंकि असली में यहाँ से एक्चुअली रेस निकल के आ रही है, पास हो रही है हमारे। ठीक है, तो ये रियल एक्चुअली रियली में मीट हो रही है यहाँ पे रेस, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल इमेज। बट देयर कैन बी अ केस जहाँ पे असली में मीट ना हो, वो मैं दिखाऊंगा केस। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा, है ना। दिस इज हाउ एन इमेज इज फॉर्म। लेट्स गो टू अनदर मिरर विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसके केस में भी बनाते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, तो इसका मुझे बताओ वसुधा तिवारी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड, क्योंकि इसका स्फीयर इधर है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, उसका फोकस इन दोनों के बीच में होगा, है ना। अब यहां से अगर कोई पैरेलल रे जाएगी ऐसे, तो अंदर जा सकती है क्या? नो सर नहीं जा सकती ना, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है इन सच अ वे, इफ इट इज पैरेलल, तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो लाइन बन रही है इसकी एफ से, उसी लाइन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। Get it? And if there was a ray which was going through C
ऐसे कोई रे बन रही थी जो सी के थ्रू जाती, तो ये फिर वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ही होगी ना, क्योंकि ये अगर ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। गेट इट? आया समझ में? यस सर। Yes. केस में हमारी आंख अगर यहाँ पे होती तो उसको क्या लगता, एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, अब ये आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, उसको लगता कि भाई यहाँ कहीं से निकल रही होगी रे, क्योंकि यहीं से ऐसा दिख रहा है उसको निकलते हुए, तो हमारी आंख को लगता कि यहाँ पे कोई चीज होगी। तो नाउ द इमेज इज हियर, बट आर द रेज एक्चुअली मीटिंग हियर? दे आर नॉट मीटिंग No, हियर, sir. इट मींस दिस इज वर्चुअल। Also, it is not possible for an image to be here, क्योंकि लाइट रे इसके पास तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो मिरर है, इट्स ओपेक है ना, तो ये हो गई वर्चुअल इमेज। गेट इट? So the difference between real image and virtual image is that in real image the light rays actually converge at a point, actually meet at a point, but in virtual image it appears to meet. हमारी आंख को लग रहा है कि इधर मिल रहा होगा, but असली में नहीं मिल रहा। बोलो राघव, what is the doubt? Sir, it'll be diminished, right? This object. This is This image diminished will be because ये diminished. right? ऑब्जेक्ट होता ना, यहाँ से लाइट रे निकल रही थी और ये छोटा हो गया तो डिमिनिश्ड, बट वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इमेज होता क्या। सो इमेज इज नथिंग बट आवर माइंड इमेजिनिंग दैट समथिंग इज केप्ट देयर बिकॉज द लाइट रे सीम्स टू बी कमिंग आउट ऑफ इट, बट इट माइट नॉट बी देयर। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बहुत बड़ा सा मिरर रहेगा तो तुमको लगेगा अरे वहां पे कोई रखा हुआ है, पर वहां जाओगे तो असली में नहीं है ना। सो आवर माइंड इज इमेजिनिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इमेज। असली में कहीं और रखा हुआ है, क्योंकि हमारे दिमाग को ही नहीं लगता कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी। ऑल्सो एक बात बताओ, हमारी आंख को ये वाली रे दिखेगी क्या, ये वाली इंसिडेंट रे? हाँ या ना? No, sir. नो, क्योंकि रेज नहीं दिखती। जो रे हमारी आंख में जाएगी वही हमको दिखेगी, ऐसे सामने कोई रे चल रही होगी तो वो नहीं दिखेगी। बट तुमने सुबह देखा है ना, वो जो सनरेज आती है तो हमको दिखता है ऐसे सनरे ऐसे ऐसे जा रही है, वो कैसे दिख जाती है हमको? भाविका जैन, वो सुबह वाली सनरेज हमको कैसे दिख जाती है? ऋत्विक विशाल, Sir, I'm not sure. वो इसलिए हमको दिखती है क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल होता है तैरता हुआ, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाती है वो रे, तभी हमको दिखती है। अगर वहां डस्ट पार्टिकल नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम स्पेस में जाएंगे तो स्पेस तो पूरा ब्लैक दिख रहा होता है ना, जबकि उधर सन रे तो जा रही है ना भाई, फिर हमको दिख क्यों नहीं रही सन रे? दैट्स बिकॉज वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है जो हमको रिफ्लेक्ट कर सके रे, हमारी आंख, ठीक है। बट हमारे स्काई में हम देखते हैं तो हमको स्काई का कलर दिखता है, और कहीं देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा किसी और प्लैनेट में, बट यहाँ पे दिखता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर स्कैटर्स द लाइट इनटू आवर आईज, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द एटमॉस्फेयर। एनीवे, गेट इट? So, sir, हाँ, so if we like use a torch in space, will we not see anything? no, you will see wherever the light falls, but you will not be able to see the light rays going there. Basically, torch तुम डालोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंख में जानी चाहिए। You can see only when light enters your eye. If it does not enter your eye, you cannot see it. Simple. Okay. Now here are 2-3 things. ये जो distance है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज कॉल्ड, सो पोल टू ऑब्जेक्ट is called object distance and it is denoted by u, pole to object, ठीक है। pole to image is called image distance and it is denoted by v. pole to focus is called focal length, focal length it is denoted by f. ये नोट कर लो ये पूरा डायग्राम, और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पोल से लेके ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट टू पोल नहीं नापते हम, कोई भी डिस्टेंस पोल से नापते हैं। सो फ्रॉम पोल टू एनीवेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्शन आएगा बाद में काम में। तो अभी पोल टू ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? पोल टू ऑब्जेक्ट आदित्य राणे, Left side. लेफ्ट साइड। पोल टू इमेज,
Right. नहीं, लेफ्ट साइड है ना, पोल टू इमेज, इमेज इधर है ना, तो पोल टू इमेज भी लेफ्ट साइड ही है इस केस में। आदित्य, Oh, yes, sir. right? In convex mirror, it would be right side. हाँ, in this case pole to image is right side. In this case, Aditya, tell me, Jasmine, you tell me, in this case pole to focus is left side or right side? In this case pole to focus, left? It's left. Okay, and in this case pole to focus is left or right? Right. Right, okay. Note it down. Pole to object, pole to image, pole to F. And anything that we count in the right direction is considered to be positive. Anything that we count in the left direction is considered to be negative. Anything that we count upwards of principal axis is positive. Anything that we count below principal axis is negative. Get it? ये भी note कर लो. This is sign convention. Done? Done? Yes, sir. Okay. Sarah, come on. Yes, sir. इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. इस केस में इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. इस केस में फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. क्यों? Sir, because हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ना, तो पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट है कि राइट है? okay, so negative. Right? Everybody respond on chat. Yes. Be interactive. Respond on chat whenever you have an answer and I'm asking question. Okay. इस केस में इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. बिकॉज इमेज इस तरफ है. और इस केस में फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. वेरी गुड, क्योंकि फोकल लेंथ इस तरफ है, राइट? सो कॉनकेव में फोकल लेंथ इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स में मिरर, दिस इज फॉर मिरर, है ना? एफ इज पॉजिटिव क्योंकि एफ इस तरफ होता है, ठीक है? बाय कन्वेंशन वी ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. बाय कन्वेंशन वी ऑलवेज कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. तो यू जो है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कौन बताएगा? तनीषा दास.
So इस केस में height of the object, is that positive or negative? So positive. And height of the image? Negative. इस केस में height of the object? Positive. इस केस में height of the image? Positive. Right? Okay. So ये हमको दिख रहा है कि जहां पे height of the object, चलो ठीक है, अभी वो बात हो रही है. ठीक है, done. So now you guys have understood the rule also and you have understood the sign convention also. ठीक है. तो जब भी कोई सवाल आएगा उसमें अगर U दिया हुआ है मतलब वो क्या होगा आदित्य राणे? U का मतलब क्या है? Concave mirror. नहीं, U का मतलब क्या होता है? Sir, Can I distance say? from pole to object. हाँ, Distance from pole to Distance object. from pole to object. हाँ, Object distance. pole to object मतलब object distance. It's called object distance. ठीक है, everybody you can respond now. And V मतलब क्या है? Image distance. Image distance. Distance from S pole. का मतलब क्या है? Distance from pole to pole. फोकल लेंथ. S का मतलब है फोकल लेंथ. ठीक है, और अगर फोकल लेंथ हमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा सारा जेकब? Sir, can I? Sir, can you repeat? अगर 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है तो रेडियस कितना होगा? चैट में लिख दो एवरीबॉडी एंड सारा जेकब यू आंसर हियर. इफ फोकल लेंथ is equals to 8 centimeter, so what is radius? Quickly people, सारा जेकब बताओ ना. Sir, the focal length will be, sorry, the radius will be 4 centimeters. No, that's no. सारा जेकब किधर है ध्यान तुम्हारा? अभी तो नोट कराया. जैस्मिन बताओ. Can I say? So 16 centimeter. वेरी गुड, 16 होगा क्योंकि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ना. तो अगर फोकल लेंथ 8 है तो रेडियस 16 होगा. ठीक है, इफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितना होगा? 5 centimeter. 5 centimeter. करेक्ट. इफ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर रेडियस कितना होगा? 20 centimeter. 20 centimeter. ठीक है, तो बेसिकली आ गया तुम लोग को अभी समझ में. चलो, सो अगर U दिया हुआ है सारा जेकब, कम इन, कीप योर माइक ऑन. Yes, sir. सारे जेकब U अगर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? U विल बी +5 और -5. Will it be a concave mirror or a convex mirror? It doesn't matter. Sir, can I say? कि हमेशा हम इसको लेफ्ट में रखते हैं मिरर के, और जो भी So चीज it will be negative. नेगेटिव होता है तो U विल ऑलवेज बी नेगेटिव. Okay. बी नेगेटिव. ठीक है, ओके, लिख लो. U will always be negative because object is always kept on the left side of the mirror. ये सब नोट किया है कि नहीं? ये साइन कन्वेंशन हाँ. ओके, डन. ओके, Raghav, turn and come in. Yes, sir. If the focus is 5 centimeter plus 5 centimeter, will it be concave mirror or convex mirror? Everyone respond on chat. Raghav, turn and tell me here. Sir, can you Sir, repeat your concave. question? If the focus is +5 centimeter, is it concave or Sir, convex. Convex because it's on the right side. exactly? It'll be Concave में left side होगा. Exactly. If the focus is -10 centimeter, is it concave or convex? Concave. Sir, concave. Because it's negative. Concave. So it will फिर focal length left side में होगा तो it'll be like this, है ना? Get it? तो अभी आ गया तुम लोग को. अभी ये इस साइड, ये साइड है इधर, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा? Sir, positive. Sir, इसका Sir, negative ना? Sir, Concave, negative. नेगेटिव होगा. ये Sir, it will be Negative होगा. ठीक है, और इस साइड का पॉजिटिव होगा.
फोकल लेंथ, ठीक है, मिरर के केस में, ठीक है, समझ में आ गया सबको, सब कुछ डन, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, Yes, sir. ओके। तो अभी तुमने यहाँ पे देखा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनी थी ना, है कि नहीं, और छोटी भी थी थोड़ी। Yes. तो ये तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जो प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्जन होता है वो एक्चुअली मिरर नहीं करता, हम करते हैं, बट ये जो इन्वर्टेड बन रही है तो मिरर कर रहा है ना, मिरर इज एक्चुअली इन्वर्टिंग इट। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुमको दिख रहा होगा, ये देखो तुम्हारा, ये देखो लैपटॉप इन्वर्टेड है ना, कैन यू सी, है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी तुमको मैं करता हूँ पिन यहाँ पे, तो तुम्हारा ये हो जाएगा बड़ा, नहीं हुआ, स्टॉप शेयर, अभी भी नहीं हुआ। How do I Sir, make? but we can see the laptop. Sir, I can see Abir inverted. I can see Abir inverted. तो अबीर को हम करते हैं स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, ओके। नाउ कैन यू सी अबीर उल्टा? अबीर रेज योर हैंड, ये देखो अबीर का हैंड ऐसे उल्टा हो गया ना, एक्चुअली ये इधर हैंड आया नहीं, अभी आएगा, नीचे करो, Sir, it won't happen because. ऊपर करो, Okay, sir. अरे उसी साइड का करो ना, मैंने अपना इधर, हाँ हाँ, डू यू सी, उल्टा है ना इमेज, यू सी उल्टा है, बट अगर मैं कॉन्वेक्स में जाऊंगा तो सीधा हो गया, राइट, सीइंग इट, और यहाँ पे उल्टी है इमेज, इन्वर्टेड, राइट। सो दैट इज रिमूव स्पॉटलाइट, ओके। नाउ व्हाट डू आई डू, इसको मैंने किया, ओके, व्यू गैलरी, शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, या सो दिखा ना तुमको, तो वैसे ही होता है, इसमें एक्चुअली इन्वर्ट हो रहा है। राघव, यू आर आस्किंग मी समथिंग, Am I? why you, I don't know, I heard somebody asking something, No. हाँ पूछो, किसको था डाउट, किसी ने पूछा ना, नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब अलग अलग केसेस में हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो पहले कॉनकेव मिरर का देखते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। अभी जो मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से देख लो और मेरे को बताओ, उसके बाद तुम खुद अपनी कॉपी में बनाओगे बुक से देख के, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वेयर यू डू द रे डायग्राम्स, ठीक है। सो टेल मी वन थिंग, इफ देयर इज अ मिरर लाइक दिस और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल है, सबसे पहले फोकस और उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो जब तक रे यहां तक आएगी हम उसको अज्यूम करेंगे कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है उसकी सारी रेज, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी है, बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसकी रेज आ रही है तो ये कहां पे मीट करेंगी, सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहां मीट करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, Focus. फोकस, है ना, फोकस में। तो यहाँ पे जो हमारी आंख देखेगी उसको लगेगा फोकस पे ही कुछ रखा हुआ है, और एकदम छोटी बन गई, एज यू कैन सी, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था बट इमेज तो इतनी छोटी सी है ना। तो इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। रियल है कि इन्वर्टेड है ये, सॉरी रियल है कि वर्चुअल है ये, Real. रियल, Real. so this Real. is real, so real and inverted and highly diminished and it will be formed at focus। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, I'll give you time to note this, अभी सिर्फ मेरे साथ बात करो so that you get all the cases, ठीक है। चलो, अब अगर ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ये है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस पोजीशन को कहते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में क्या होगा, एक रे ऐसी जाएगी, फोकस से पास हो गई,
एक रे फोकस से पास होगी, इसको तुम जब बनाओगे तुम्हें स्केल से बनाना, अभी मैं समझाने के लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो ये पैरेलल हो जाएगी, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, बेसिकली यहाँ पे मीट होना चाहिए, तो यहाँ इसका इमेज बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इट विल बी फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ एंड इट इज डिमिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट केस इज व्हेन देयर इज अ कॉनकेव मिरर, this is F, this is C, and the object is kept at C. तो यहां से जाएगा ऐसे, यहां से जाएगा ऐसे, कायदे से यहां कहीं पे, तो it is formed at C itself. So the image is formed at C if the object is kept at C. इस केस में it is of the same length, same height. So it is of the same size, real inverted, formed at C. Okay? अभी तुमको एक पैटर्न दिख रहा होगा, सबसे पहले बहुत डिमिनिश था, उसके बाद डिमिनिश्ड हुआ, उसके बाद सेम साइज का हो गया। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेते आते जा रहे हैं मिरर के, इमेज की साइज बढ़ती जा रही है। सो दिस इज अ पैटर्न। फिर हमने एक और लिया एफ सी, अब कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे जाएगा, between C and F. हाँ बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि अभी रखा था, फिर बियॉन्ड सी रखा था, एट सी रखा, फिर अब हमने सी एंड एफ पे रखा है ना, बिटवीन सी एंड एफ। तो इस केस में क्या होगा कि हम ऐसे रे डायग्राम बनाएंगे, तो ये ऐसा गया। और क्या कर सकते हैं हम, थ्रू एफ, है ना, एंड वन कैन गो सी से ऐसे, तो अगर कोई रे ऐसे जाएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, है ना। तो ये इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। तो एज यू कैन सी नाउ द इमेज इज एनलार्ज्ड and it is formed beyond C. Beyond C बनी real and inverted, ठीक है। उसके बाद but it's not meeting. हाँ, Can you show it again? Can you show it again? वो मैंने मेजरमेंट से नहीं बनाया ना, तो इट्स नॉट ऑल मीटिंग एट द सेम प्लेस। आई शो यू अ प्रॉपर डायग्राम आफ्टर दिस, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू द रे डायग्राम, देन आई शो यू अ प्रॉपर डायग्राम आफ्टर दिस, ठीक है। उसके बाद ये F है, ये C है, लास्ट केस में हमने सी और एफ के बीच में लिया था। अब क्या करेंगे हम, इसको एट एफ लेंगे, एट एफ। एट एफ को कैसे बना सकते हैं, एक पैरेलल रे ले लो, ऐसे गया, और एक और क्या लाइन बना सकते हैं, अगर वो सी से उसको कनेक्ट कर लें ऐसा, ऐसे जाएगी तो वो वापस सी से होते हुए जाएगी। तो एज यू कैन सी दे आर पैरेलल रेज, दे आर नॉट गोइंग टू मीट, so the image will be formed at infinity, ठीक है। तो अगर f पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो the image will be formed at infinity, डन। समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी इसको नोट मत करना, I'll give you time to note. Now this is a tricky situation, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये पोल है, ये f है, ये c है, ध्यान से देखो भाई एवरीबॉडी। Now if the object is kept, ये बहुत ट्रिकी है, तुमको समझ में नहीं आएगा बाद में, अभी ध्यान से देख लो। If the object is kept between F and P, तो उसका कैसे करेंगे, एक रे ऐसे बनाया हमने, तो ये कहाँ जाएगी, स्नेहल कश्यप, where will this ray go? हाँ क्या, स्नेहल कश्यप बोलो ना। Hello? हाँ बोलो, ये रे कहाँ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, Stars. Up, down. I can't understand what he's saying. Did you hear what he said? So he So he said down. डाउन क्या होता है भाई, ये पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, where will it go? Sir, can I say? Can I say? Let him say ना, let him say. May I? Take the same way back. No, it will not. Bring your video. Why do you keep off your video? अभी इतनी देर से समझा दिया इसको। स्नेहल कश्यप, ये लॉ भी रूल भी लिखाया था मैंने। If the incident ray is parallel to principal axis, what will happen to the reflected ray? हाँ 1 minute, sir. Can I answer? तो अभी तक क्या कर रहे थे भाई, ये कम से कम 10 बार हमने इसको किया ना अभी।
Yeah, that's what. Jasmine, tell me, what will happen to this ray after reflection? So it will pass through the focus. Very good. इतनी सिंपल सी चीज है यार, तुम अगर मतलब वीडियो भी ऑफ करके बैठ गए, that's what happens. I think जो लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं ना वो क्लास में होते ही नहीं है. This will go like this, right? And what will happen to the C line? So what we'll do is we'll connect it like this. So one ray which is going like this, incident, after reflection, it'll go like this. So Jasmine, tell me, will it meet anywhere here? No, sir. नहीं, क्योंकि वो तो Sir, can I say? Wait. I'll explain this. Give me a second. तो यहाँ पे आंख, अगर हमारी आंख है यहाँ पे, उसको ये लाइट रे ऐसी आती हुई दिखेगी, तो उसको क्या लगेगा, कहाँ से आ रही है? आगे कहीं उसको लगेगा कि ये आगे कहीं मिल रही होगी, है ना? You see? तो उसको लगेगा कि वो आगे यहाँ से कहीं मिल रही होगी. So now this is the image for our eye. Now tell me, Vasudha, is this a real image or a virtual image? It's a virtual image. Very good, because असली में लाइट रे नहीं मिल रही है, हमारी आंख को लग रहा है, it appears like it's converging but it's not converging. Is it enlarged or diminished? Enlarged. Or enlarged. Very good, it's enlarged. And it is virtual. And is it erect or inverted? Erect. Erect. Inverted का मतलब होता है अगर ये opposite इधर इस डायरेक्शन में होता है ना. This is erect, this is virtual, this is enlarged, and it is formed behind the mirror. ठीक है? This is formed behind the mirror. Get it? तो इसके यूज भी होते हैं बहुत सारी जगह. I'll show you. तो कहाँ पे ऐसा यूज हो सकता है? तो ये हम शेविंग मिरर में ऐसा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को. क्यों? क्योंकि जब हम शेव कर रहे होते हैं तो हमको देखना होता है एग्जैक्टली यू नो कहाँ पे बाल है और क्या. तो वो अगर हम मिरर के एकदम पास चले जाते हैं तो इट लुक्स रियली रियली बिग एंड देन यू कैन डू इट विद प्रिसीजन. दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट? नाउ सी, अभी इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पे तो सीधा है. इसका मतलब अगर मैं पास लेके आते जाऊँ तो एक बार ही अब ये सीधा हो जाएगा. नाउ सीधा हो गया. कैन यू सी? Yes, sir. Now you see this thing, it has become so huge. The camera thing and this thing, right? It has become enlarged. You see? Or enlarged होते हैं, right? So basically that's how the concave mirror works like. Convex mirror में क्या होता है? मैं फटाक से समझा देता हूँ convex mirror भी, उसके बाद तुम लोग इसको ड्रॉ करते रहना. किसी को अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है? Now this thing, this guy, what's his name? Snail Kashyap, come in. Yes, sir. Now be with me. Put on your video. Now tell me, ये कौन सा मिरर है भाई? Convex. Convex. इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive. अगर तुमको नहीं पता तो बता दो, मैं रिवाइज करवा दूंगा. दैट्स ऑल राइट. पहली क्लास है, जरूरी नहीं है सब कुछ याद हो. तो अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो कि मेरे को नहीं पता सर. Positive. पॉजिटिव. व्हाई विल इट बी पॉजिटिव? Inward. हाँ, बिकॉज दिस साइड. हाँ, सो फोकस इज दिस साइड. ठीक है? Sideward. अगर फोकस इधर है तो इसका एक्चुअली फोकस को थोड़ा पास बनाते हैं ताकि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना सकें. ये अगर फोकस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, है ना? अब इस केस में अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो एक पैरेलल रे जाएगी ऐसी. अब ये पैरेलल रे को क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था. इसका क्या होगा, हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे फोकस से ऐसे, और इसी लाइन में रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी. ठीक है? एंड Could you repeat? if this thing goes like this, which is in line with center of curvature, तो फिर वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो हमारी आंख को लगेगा कि यहाँ एक कोई इमेज बन रही है ना? हमारी आंख को लगेगा. सो दिस इज स्नेल कश्यप. इज दिस वर्चुअल और रियल? Real. नहीं, यहाँ पे हमको इट अपीयर्स, यहाँ पे असली में लाइट रे नहीं मिल रही. लाइट रे तो ऐसे करके वापस चली गई ना. तो यहाँ पे इट अपीयर्स की कन्वर्ज हो रही है, असली में नहीं हो रही. इसलिए दिस इज वर्चुअल इमेज. ठीक है? और इज इट डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड? हाँ, इज इट डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड? डिमिनिश का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है कि बड़ा है.
तो बड़ा होगा तो एनलार्ज है, डिमिनिश का मतलब छोटा है, तो ये डिमिनिश है कि एनलार्ज है? छोटा है ना, तो डिमिनिश्ड है, तो ये डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। और इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तो भाई अगर जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्ट होना ना, उल्टा होना, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो ये इन्वर्टेड है, ये इरेक्ट है, ठीक है। तो इरेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन में खड़ा हुआ है क्या, और इन्वर्टेड का मतलब है ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। आया? गॉट इट? Can you repeat again? इरेक्ट का मतलब है इफ द इमेज इज बिल्ट, इमेज इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के कंपैरिजन में, और ये इमेज भी ऊपर की तरफ है, तो ये इरेक्ट है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, तो अगर ये नीचे की तरफ बनता तो इन्वर्टेड होता। आया? ठीक है, एवरीवन गॉट इट? Sir, I have a Yes. doubt. हाँ बोलो ना, क्या डाउट है, बोलो। Sir, can you present your screen again? I wanted to ask. या जस्ट अ सेकंड ना। या चल। Sir, before, in case of a concave mirror, you said when the object is placed after focus, between pole and focus, so it will form a virtual image. Correct. But when, so the imaginary lines meet outside the pole. So if we keep the object on focus, why aren't the imaginary lines meeting on the other side? Because the lines, the rays are parallel, will never meet either on this side or this side. Okay. But we hope, क्योंकि वो तो ऐसे जा ही रहा है, तो हमको एक्सट्रीमली एनलार्ज लगेगा। तुम एक्चुअली उसका वो सेंस भी नहीं बना पाओगे जब तुम कॉनकेव मिरर पे देखोगे। अगर एकदम फोकल लेंथ पे कोई चीज रखी हुई है तो तुमको एक्सट्रीमली एनलार्ज दिखेगा। मैं दिखाता हूँ, I'll show you. Okay, sir. Okay, चलो ना। हाँ बोलो। So like, how do we differentiate that which image will be diminished and which will be enlarged in that ray diagram? हमको दो तीन तरीके से पता चल सकता है। हमको रे डायग्राम से पता चल सकता है, तो हम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। वन। सेकेंड इज हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, उससे भी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि छोटी बन रही इमेज की बड़ी बन रही है। तीसरा है कि एक्चुअली मिरर को लेके देख लो तुम, छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। चौथा है यू कैन रिमेंबर, एंड आई विल गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर। सो लुक हियर, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू रिमेंबर। दिख रहा है? Are you able to see this simulation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, ये कौन सा मिरर है? Concave. Concave. ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसका फोकस फोकल लेंथ कितना है इसका? -4. -4. -4, not +4, -4. If focal length is -4, then what will be the radius? -8. -8. Right? So as you can see, this is object, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर मैं पीछे एकदम इंफिनिटी और दूर लेके जाऊंगा, इंफिनिटी पे लेके जाऊंगा, तो फोकस पे इमेज बनेगी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा यहाँ कहीं, तो इमेज छोटी बन रही है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट साइड पे रखोगे तो इमेज छोटी बनेगी। सो बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज छोटी बनेगी, और कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं पास लेके आते जा रहा हूँ, एज यू कैन सी टुवर्ड्स द मिरर, इमेज बढ़ते जा रही है कि कम होते जा रही है? छोटी होते जा रही है कि बढ़ते जा रही है? बढ़ती जा रही है। Right? And the moment it comes at center of curvature, it is formed of the same size. So it follows the same path. है ना? और C और F के बीच में था पहले, लेकिन अब ये C पे पहुंच गया। Now if I cross it, तो you can see कि अब ये इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से और बड़ी हो गई है, ठीक है। और जब हम फोकस पे पहुंचेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी इसकी साइज। यू कैन सी इनफाइनाइट, राइट?
नाउ इफ यू Yes, sir. बियॉन्ड फोकस, तो अब ये वर्चुअल बनने लगी इमेज, राइट? यू कैन सी, देखो, है ना? और अब बहुत एनलार्ज है, तो वर्चुअल है और एनलार्ज है। ये है कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स के केस में नहीं, कॉनकेव के केस में, ठीक है? और अगर मैं ऑब्जेक्ट इस तरफ ले जाता हूं तो अब ये क्या हो गई, ये कॉनकेव मिरर हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब इसके इस तरफ आ गया। तो यू कैन सी हर केस में ये वर्चुअली बन रही है, दूसरी साइड इमेज, है ना? ठीक है, और हमेशा छोटी बन रही है। गेट इट? सो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर हमारे बैक रियर व्यू मिरर में यूज होता है, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, हमको ज्यादा चीजें दिख पाती है, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो छोटी बन रही है। इसका मतलब बड़ा एरिया दोगे तुम पीछे तो तुमको छोटा दिखेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है? सो ये मैं तुमको लिंक भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, और तुम्हारे बुक में रे डायग्राम्स बने होंगे कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। देखो, खोल के देखो बुक, Sir, की बुक। sir, I disconnected. Can you say everything again? कौन बोल रहा है भाई? ऋत्विक विशाल। Ritvik, I disconnected. Ritvik, I showed a simulation on how ये अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कैसे कैसे बनेगा। सो बियॉन्ड सी है, तो चलो एक क्विज करते हैं एवरीबॉडी। अगर बियॉन्ड सी रखा है कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा? Between C and F. center of curvature and focus. छोटा Center of बनेगा, curvature and क्या क्या और जानते हैं इसके बारे में बताओ? छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, है ना? Yes. तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड विल बी फॉर्म बिटवीन C and F, है ना? एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एट C, then Sir, it follows the It will same. be of the same size. It will be on a C, but it will be inverted. real inverted and will be formed at C. If the object is between C and F, then the image is Sir. real inverted, it is enlarged and it is formed beyond C. If the object is at F, then it is real and inverted, it is highly enlarged and it is formed at infinity. Infinity. And if the object is between F and P, then Virtual. So virtual image. virtual and enlarged. erect. virtual and erect, okay, then And enlarged. highly Enlarged. Enlarged. highly enlarged, and it is formed behind the mirror. ठीक है? तो ये तुमको अब याद हो गया। तो कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जहां तुमको ऐसा केस दिया हुआ है, तो तुमको पता चल जाएगा, है ना? ये देखो, अब तुम फोकस भी चेंज So कर there's सकते only one ray diagram. हो। हाँ जी, So there's only one ray diagram for convex mirror. हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा एक ही चीज बनते रहती है, ऐसे लाइक दिस। तो अभी अब इसका फोकस हमने पॉजिटिव कर दिया इस तरफ, यू कैन सी फोकस को मैंने +4 कर दिया, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। Convex. अब इसको मैं कितना भी पीछे लेके जाऊं, यू कैन सी इमेज छोटी बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है ना? यू सी, चाहे कितना भी पास sir. है तो भी बिहाइंड द मिरर ही बन रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इन कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, ठीक है? नाउ ओपन योर वाई अकेडमी वर्कबुक्स। And on Y Academy workbook, you would have all the ray diagrams. So make it with proper markings, measurements, ठीक है? पूरा measurement ले लेके ठीक से बनाओ, और जब बन जाए सारे रे डायग्राम, तो आज जितने भी नोट्स हैं और रे डायग्राम हैं ये ग्रुप पे भेजो पीडीएफ में। आई एम गोइंग टू गिव यू 20 minutes to do this. अभी 4:20 हुआ है, by 4:40 you should send it on the group, ठीक है? So Jasmine, since you don't have the book right now, you can use your NCERT to see the ray diagram and make it, Okay. and you can send it directly to the Y Academy number. Sir, for both ना concave and convex. हाँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों बनाना है और हर केस के लिए बनाना है। कॉनकेव में स्टार्ट विद इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद बियॉन्ड सी रखा है, फिर एट सी रखा है, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एट एफ है, उसके बाद एफ एंड पी के बीच में, और कॉन्वेक्स के केस में कहीं पे भी रखा है, तो कैसा बनेगा, ठीक है? So chapter notes, right? हाँ, Chapter चैप्टर नोट्स में ही है, चैप्टर नोट्स में ही है, ठीक है? चलो, do this and send it to me on the group. I'm going to give you 20 minutes. If there's any doubt, ask me on the group. I'm here.
ask me on the group, I'll respond. Any doubts अभी तक किसी को? I think सबको समझ में आ गया होगा, सब कुछ एकदम crystal clear होगा. ठीक है? Okay. Send it to me on, and then we'll continue. हाँ बोलो. Sir, there's only one ray diagram for convex. Yes, there's only one ray diagram for convex. So we can leave the meeting or should we stay? Stay here. We'll continue the class at 4:40 once you've submitted.